Good morning, students. How are you? Fine, beta. Yesterday we will complete our chapter number 10, Force and Machine, and today we will discuss its exercise. Okay? Exercise आज हमें complete discuss करनी है. So, आप अपनी notebook, pencil, book अपने साथ लीजिए and मेरे साथ आप उनको fill करेंगे. Okay? First, टिक द करेक्ट आंसर. आपका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको टिक द करेक्ट आंसर्स. ओपन योर पेज नंबर B27. पेज नंबर B27. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर ए. टिक द करेक्ट पार्ट. टिक द करेक्ट पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन. Read your first question from the screen. Which of the following is an example of a lever? Which of the following is an example of lever? Lever का एक example बेटा knife, screwdriver, slide, seesaw. So here right statement is the option number D. Dad's name is the seesaw. Take care. Second question. Which of the following forces attracts object to the center of the earth? कि in which of the following force attract the objects toward the center of earth without any no doubt that name is gravity. That name is the gravity. So A option is the correct option. Gravity. Question number third. Which kind of force is required to push a cart? Very well known. That type of force is the muscular force. You need the muscular force. अपनी मसल्स का यूज करके आप कार्ट को मूव कराएंगे. Muscular force. Fourth question is which of the following is a source of sound energy? Which of the following? Tabla, lamp, gas and coal. Lamp, gas, coal are the fuels, but tabla is a source of the sound energy. So here correct option is the tabla. Question number 5th is which of the following is an example of a first class lever? First class lever आपका सीजर. विदाउट डाउट आपको क्या फिल करना है यहाँ पे? सीजर फिल करना है. ए ऑप्शन. आपको क्या फिल करना है यहाँ पे? सीजर फिल करना है. इसी तरह से आपका क्वेश्चन नंबर बी आता है. फिल इन द ब्लैंक्स. First question is A. Fill in the blanks. Change the direction of force applied. Pulley or wedge? बिल्कुल सिंपल है. Pulley can change the direction of force. ठीक है, आप कह सकते हैं आपके direction of the force applied. So pulley. Second fill in the blanks is the object on which work is done. Load है effort. बिल्कुल सिंपल. Load is the object where force is applied. A plier and fill in the blanks are the example of first class lever. Wheelbarrow and crowbar. Simple है आपका crowbar. Fourth is mechanical energy is of two types: kinetic energy and the potential energy. Fifth is fill in the blanks. Energy helps us to see things. Light energy. It means आपका light energy. Okay, simple है. The next is question number C. Name the following. Okay, in name the following, read your question number first. Two examples of wedge. Wedge आपका क्या था? Combination of the two inclined plane, and the example of two wedge are knife, and the axe. Okay. Question number second is two source of sound energy. What is the two source of sound energy? Tabla, horn, loudspeaker,
Okay. Third is two appliances that use electric energy. बिल्कुल सिंपल है आपका इलेक्ट्रिक बल्ब, then second is washing machine. Name any two appliances that is used here, that is operated by the electricity. Fourth is the force which helps us you to write. Sorry, the force which helps you to write. आपको write करने में जो help करता है force, that name is the friction. Okay, friction helps to write. Two source of heat energy. Heat energy के source आपके क्या होते हैं? sun है, कैंडल है, स्टोव है. ओके, ये आपके क्या है? टू सोर्स ऑफ द हीट एनर्जी है. बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है. अब आपका आता है क्वेश्चन नंबर डी. आंसर नंबर फर्स्ट, आंसर द फॉलोइंग. आंसर द फॉलोइंग में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर B28 पे. रीड कीजिए. पेज नंबर B28. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोर्स, या कह सकते हैं आप डिफाइन फोर्स. तो फोर्स क्या होता है? ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स. सो राइट हियर द डेफिनेशन. ए पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स. आप उनको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं. ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पे आप पुश और पुल अप्लाइड करते हैं, इट इज कॉल्ड द फोर्स. सेकंड आंसर इज, रीड कीजिए क्वेश्चन नंबर सेकंड. व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? कि व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? तो इट मींस द फोर्स दैट अट्रैक्ट्स ऑब्जेक्ट the force that attracts objects to the center of the earth. To the center of earth is called ग्रेविटेशनल फोर्स. आप उनको क्या कहते हो? आप ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हो. डेट अट्रैक्ट्स द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. जो सेंटर ऑफ अर्थ के साइड ऑब्जेक्ट्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं. डेट आर नोन एज द ग्रेविटेशनल फोर्स. रीड योर क्वेश्चन नंबर थर्ड फ्रॉम योर बुक. What is mechanical energy? What is mechanical energy? The energy possessed by an object the energy possessed by an object due to its position and movement is called mechanical energy. Okay, simple. Question number 4. Read your question number 4 from your book. What is the difference between load and effort? बिल्कुल सिंपल है बेटा. What is the difference between load and effort? You have to write the definition of the load and effort. लोड के बारे में आप क्या नोट करेंगे? लोड इज द ऑब्जेक्ट load is the object
on which work is being done. ओके, एफर्ट में आप क्या नोट करेंगे? एफर्ट इज द एफर्ट क्या है आपका? फोर्स अप्लाइड टू द लीवर, कि आपके लीवर पे आपका जो फोर्स अप्लाई होता है उसको आप क्या कहते हो? आप एफर्ट कहते हो। सिंपल है बेटा, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि जो आप जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप फोर्स लगाते हो वो क्या है? आपका लोड है। और जितना आप फोर्स लगाते हो लीवर पे उसको क्या कहते हो? आप एफर्ट कहते हो। आप क्या कहते हो? आप उसको एफर्ट कहते हैं। इस तरह से अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक आपने कंप्लीट किया। डू फास्ट। Now we come to our question number 5. Read your question number 5 from your book. Read the statement of the question. What is an inclined plane? Give two examples of the inclined plane. It means what do you understand by the inclined plane? Okay, inclined plane आपका क्या होता है? An inclined plane is a slope. क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन आपका एक बार आप दोबारा रीड कीजिए बेटा, रिपीट अगेन। व्हाट इज एन इंक्लाइंड प्लेन? गिव टू एग्जांपल्स ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। तो आपको इंक्लाइंड प्लेन के बारे में डेफिनेशन देनी है। सो इंक्लाइंड प्लेन इज अ स्लोप एंड inclined plane is a slope in which less effort is needed to move an object Wait बेटा। Students, inclined plane में आपका inclined plane is a slope in which less effort is needed to move an object. आपके ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए लेस एफर्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट अप थ्रो an inclined plane. अब यहाँ पे बस इतना ही कीजिए। An inclined plane is a slope in which less effort is needed to move an object up. ओके, आपके एग्जांपल्स हैं इनके लिए। इंक्लाइंड प्लेन के एग्जांपल्स क्या होते हैं? 4 एग्जांपल्स। आपको क्या होता है? आपका आप उसको क्या कहते हो बेटा? आपकी जो रैंप होती है, सॉरी रैंप है आपका, स्लाइड्स होती हैं आपकी काफी, रैंप, स्टेयरकेस, slides, etc. Okay, these are the example of the inclined plane. Now come to our question number 6. Name different type of force. You have to write the name the different type of force. How many types of the force exist in your syllabus? Mainly 3 or 4 types. Gravitational. Okay, तो हम यहाँ पे नोट करते हैं कि the main type of force. The main type of force are following. उनके नेम कहाँ है? नीचे है बेटा। फर्स्ट इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स,
सेकेंड इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद बेटा आपका न्यू फोर्स आता है मैग्नेटिक फोर्स। नंबर थर्ड आता है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फोर्थ आता है आपका मस्कुलर फोर्स। फिफ्थ आता है आपका फ्रिक्शन। ठीक है, फर्स्ट क्या ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मस्कुलर, फ्रिक्शनल फोर्स के बारे में आपने किया। इस तरह से आपके क्या थे सिलेबस के फोर्स आपके इतने ही थे, आपके मेनली 5 टाइप्स के आपके पास क्या थे फोर्स थे। अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 है नेम डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्स, हो गया आपका 6। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट टू एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। वी हैव टू राइट द टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ द फ्रिक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे कुछ भी मत नोट कीजिए, यहाँ पे आप सिर्फ ये नोट कीजिए एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। आपकी क्या आती है फ्रिक्शन की एडवांटेजेस। ओके, फर्स्ट एडवांटेजेस आपकी हम बोर्ड को स्प्लिट कर लेते हैं 2 पार्ट्स, दैट मेक्स मच मोर इजियर। आपका फर्स्ट एडवांटेजेस आपका क्या आता है बेटा कि ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन हेल्प टू मूव। तो आप ये कह सकते हैं यहाँ पे बेटा आपका एन इरेजर यूज फ्रिक्शन टू रब ऑफ पेंसिल्स। एन इरेजर uses friction to rub off pencil marks। ओके, सेकंड है आपका इट हेल्प्स अस टू होल्ड पेंसिल। इट मीन्स हम सेकंड हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कि विदाउट it helps us to invoke without sleeping। ये हमारी चलने में मदद करता है विदाउट स्लीपिंग। ये आपके क्या हो गए एडवांटेजेस हो गए। आपको दिखाई दे रहा है बेटा, मे बी आपको कैमरा चेंज करना पड़ेगा। फ्रिक्शन के आपके डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शंस की क्या क्या है। सिंपल है कि फ्रिक्शंस की वजह से आपके जो सोल्स होते हैं वो वियर हो जाते हैं, रिफट जाते हैं। तो आप कह सकते हो कि फ्रिक्शन कैन वियर आउट द इट वियर आउट द सोल्स ऑफ शूज। ये क्या करते हैं आपके सोल्स ऑफ शूज को टायर ऑफ व्हीकल्स। सेकेंड है आपका इट मेक्स डिफिकल्ट टू स्लाइड हैवी रोड्स। इट मेक्स डिफिकल्टी टू स्लाइड heavy loads on the floor। अब हमारा क्वेश्चन नंबर क्या आ रहा है बेटा 8 आ रहा है। सिंपल है आपका भी, आपने क्या किया क्वेश्चन नंबर 6 किया, 7 किया, 8 किया। रीड द क्वेश्चन नंबर 8 फ्रॉम योर बुक। व्हाट इज योर क्वेश्चन नंबर 8? व्हाट इज एनर्जी? एक्सप्लेन एनी टू फॉर्म ऑफ एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। सिंपल इन सिंपल वर्ड्स
एनर्जी क्या होती है आपकी? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। एनर्जी हमारी क्या है? एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। इट मीन्स यू here write that energy is the ability to do work। ठीक है, एनर्जी की आपकी इज एबिलिटी टू डू वर्क। आपकी जो एनर्जी के एग्जांपल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल मस्कुलर एनर्जी, सेकंड आप करने वाले हैं साउंड एनर्जी, एक्सेट्रा। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन है आपका। रीडियर क्वेश्चन नंबर 9, एक्सप्लेन द डिफरेंट क्लासेस ऑफ लीवर विद द एग्जांपल्स। आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है डिफरेंट क्लास ऑफ लीवर विद एग्जांपल। तो इट मींस लीवर के एग्जांपल्स के आप एक्सप्लेन करेंगे, तो आप यहाँ पे क्या कहने वाले हैं? सबसे पहले देयर आर 3 क्लासेस ऑफ लीवर। देयर आर 3 क्लासेस ऑफ liver. Number 1 is first class liver। फर्स्ट क्लास लिवर में आपको क्या मिलता है बेटा? फर्स्ट क्लास लिवर, in this fulcrum is located between the load and the effort। in this type of liver fulcrum is located between the load and effort। ठीक है, आपका क्या सिचुएटेड होता है? आपका मिडिल में आपका इन दिस टाइप ऑफ लिवर आपका हमेशा फुलक्रम आपका लोकेटेड होता है बिटवीन लोड एंड एफर्ट। बिल्कुल सिंपल है बेटा। अब हम करने वाले हैं सेकंड टाइप ऑफ लिवर। आपको दिखाई नहीं देगा ना बेटा, आपको कैमरा चेक करते हैं हम। ठीक है, सेकंड टाइप ऑफ लिवर में हम क्या करने वाले हैं? सेकंड क्लास ऑफ लिवर। सेकंड क्लास लिवर। ओके, सेकंड क्लास लिवर में हम करने वाले हैं इन दिस टाइप ऑफ लिवर load is located between the fulcrum and effort। हमेशा क्या होता है आपका? इन दिस टाइप ऑफ लीवर लोड इज लोकेटेड, हमेशा लोड लोकेटेड होता है बिटवीन द फुलक्रम एंड एफर्ट। थर्ड है आपका थर्ड क्लास लीवर। थर्ड क्लास लीवर में आप क्या करने वाले हैं कि इन दिस टाइप ऑफ लीवर एफर्ट, हमेशा क्या रहता है आपका? एफर्ट रहता है मिडल में। एफर्ट इज लोकेटेड बिटवीन द फुलक्रम एंड लोड। आपका हमेशा क्या रहता है? इस दिस टाइप ऑफ लीवर आपका क्या रहता है? आपका एफर्ट हमेशा लोकेटेड रहता है बिटवीन द फुलक्रम एंड द लोड। इस तरह से आपके क्या है बेटा? ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हुए हैं, आपको करने हैं क्वेश्चंस। आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, कोई डाउट नहीं है ना इस एक्सरसाइज के अंदर। आपका नेक्स्ट आता है बेटा पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट आप करेंगे खुद, आपको कोई नहीं कराएगा पीरियोडिक टेस्ट। पीरियोडिक टेस्ट आपको खुद करना है।
क्यों रीजन बेटा इसके लिए? क्योंकि सारे क्वेश्चंस आपके रिपीटेड है प्रीवियस चैप्टर के लिए, तो ये आपके सेल्फ प्रैक्टिस टेस्ट है. इन टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट योर नेक्स्ट चैप्टर, दैट्स नेम. हम 11 चैप्टर के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट्स नेम इज एयर एंड वाटर. ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे बेटा.